जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजस्तोत्र शिष्य डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीपीटी फाउंडाचार्य श्री प्रभुपाद की जय इस्कॉन गुरु वृंद की जय श्री गुरु परंपरा की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय निताय गौप्रेमानंदे हरि देव ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. So we'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, Praise by Queen Kunti, text number 27. So 27 is a very long purpose, but today is also Advaitacharya appearance day. So we'll just read a little bit of Bhagavatam, then I want to read from Sri Chaitanya Charitamrita about the glories of Sri Advaitacharya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Kinchana Vittaya. Nivrita Gunavrittaye
आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमः, all obeisances unto you. Akinchana vittaya, or unto the property of the materially impoverished. Nivritta, completely transcendental to the actions of the material modes. Guna, material modes. Vrittaye, affection. Atma, aramaya, one who is self-satisfied. Santaya, most gentle. Kaivalyapate, unto the master of the monists. Namaha, bowing down. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. My obeisances unto you, who are the property of the materially impoverished. You have nothing to do with the actions and reactions of the material modes of nature. You are self-satisfied and therefore you are the most gentle and are the master of the monists. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Rama Krishna Samriti Namne. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Samriti Namne. Namaste Saraswati Deve Gauravani Vichar Nirvishesha Shunyavadi Asadya Shitani. हरे कृष्णा। तो आज कुंती माता का प्रार्थना है। आज प्रार्थना में भगवान से बोल रही है कि हमारा जो ओबेसेंसेस ऑन टू यू, और वो जैसे कल का श्लोक में प्रभु जी पढ़े थे, वेरी नाइस वेस यस्टरडे ऑल्सो, कि भगवान जो है वो जन्म ऐश्वर्य और श्रुत श्रीभीर से आकर्षित नहीं होते ना। भगवान बताया गया है हाई पेरेंटेज, ग्रेट ऑपुलेंस, हाई एजुकेशन और बॉडली ब्यूटी से भगवान नहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो आज यहाँ पे बताते हैं कि एक्चुअली में भगवान क्या है। भगवान इज द हु आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियली इम्पोविश्ड। मैं हमेशा इसके विषय में सोचता हूँ। जनरली इवन चार प्रकार के लोग दे बिकम डिवोटीज, बट जनरली वी फील वी मेजर द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा बाय मटेरियल इम्प्रूवमेंट। डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल, मटेरियल इम्प्रूवमेंट इज बाय प्रोडक्ट। प्रभुपाद जी बोलते जैसे यू मेक शुगर मिल
to produce sugar, not the molasses. But molasses comes itself. So तब से when we take to Krishna consciousness, material opulence follows itself. But gold material opulence नहीं. Krishna becomes, so तब से, just yesterday I was hearing one lecture, today being Advaita Acharya's appearance day, so Prabhupada was speaking on Advaita Acharya, and Monday was also Raghunath Das Goswami's appearance day. So Prabhupada was speaking on both the topics. So Prabhupada ji बोला, Raghunath Das Goswami came from a very aristocratic family. उनके पिताजी जमींदार थे, राजा थे. तो बोला कि but every time Raghunath Das Goswami would run away to Chaitanya Mahaprabhu. सब समय चैतन्य महाप्रभु के लिए भाग जाते. तो चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं, वापस जाओ, इस तरह से रहो, when the time will be right, things will happen. तो प्रभुपाद जी वहाँ कमेंट करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि बोले चैतन्य चरित में बेस है ना कि प्रभुपाद जी बोलते सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. तो चैतन्य महाप्रभु बोला रघुनाथ दास गोस्वामी भला ना परीबे भला ना खाईबे. तो इट सिंपल लिविंग इट गिव्स अस अ सिचुएशन. प्रभुपाद जी बोले हम लोग not that devotees are poor, but we take a vow of poverty. मतलब we take a vow of simplicity in life. तो बोले रघुनाथ दास गोस्वामी बोला कि एकदम ऑपुलेंटली पहनना नहीं चाहिए और इतना ऑपुलेंटली खाना नहीं चाहिए. बट ऑफ कोर्स वी डोंट ये वेस्ट लेके हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि संडे फीस्ट हम लोग बॉइल्ड वेजिटेबल्स कर देंगे तो कोई आएगा नहीं. प्रभुपाद जी बोला प्रसादम इज कृष्ण's mercy. प्रसादम एकदम गला तक खाना चाहिए. तो प्रभुपाद जी बोला ऐसे आप दूसरे नियम फॉलो कर सकते हो. संडे इज अ लव फीस्ट. तो यहाँ पे बोला कि कृष्ण इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियली इम्प्रोविज्ड. एक्चुअली में जब लाइफ सिंपल होता है और एक्चुअली में महाभारत में भी लोग देखते हैं कुंती माता एंड पांडवस दे वेंट थ्रू सो मच डिस्ट्रेस. इतना दुख था उनको. लेकिन दुख में क्या होता है, दुख में क्या होता है कि बहुत सिंसियर फीलिंग्स फ्रॉम द हार्ट आर. व्हेन यू आर नॉट इन मिजरी, आप अपने देखना कि व्हेन यू आर प्रेइंग टू कृष्णा, जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कितना सिंसियर. आई थिंक जब हम लोग सुखी होते हैं, रिच अवस्था में होते हैं, मटेरियली इम्प्रूव अवस्था में होते हैं, तो हम लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल वे से भगवान को प्रार्थना करते हैं. क्योंकि नॉलेज से हम लोगों ने खाली मांगता है कि हाँ भगवान सुप्रीम है, देयरफॉर वी मस्ट ऑफर प्रेयर्स. बट कृष्ण वांट्स द प्रेयर टू कम फ्रॉम जेन्युइन सिंसियरिटी के मतलब इट कम्स फ्रॉम द हार्ट ना. तो इंटेलेक्ट से प्रे करना वो भी गलत नहीं है, ज्ञानी का मार्ग है. बट जब इंटेलेक्ट के हार्ट से कंबाइन नहीं करो तब ज्ञानी देखो भगवान के नहीं समझ पाए. बट जो हार्ट से लविंग डिवोशनल सर्विस से भगवान को समझ जाते हैं. और बोले भगवान इज नथिंग टू डू विद द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर. भगवान तन को मटेरियल मोड्स ऑफ, हम लोग मटेरियल मोड से है ना, तो हम लोग उसके कॉम्बिनेशन से ये हो जाता है. और सबसे सुंदर बात बोले प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में है, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड. भगवान आत्मा राम है, सब टाइम सेटिस्फाइड, राइट. एंड देयरफॉर यू आर द मोस्ट जेंटल. जब हम लोग सेटिस्फाइड रहेगा तो हम लोग जेंटल हो जाएगा. जब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो मतलब अलग अलग डिजायर्स हम लोगों के पुश करें. जब अलग डिजायर्स हम लोग के पुश करें तो हम लोग अलग अलग मोड्स के कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगे. तो इतना सुंदर से बताया. एंड यू आर द मास्टर ऑफ द मोनिस. तो जैसे प्रभुपाद जी को बताया ना, प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए तो निर्विशेष शून्यवादी, जो मोनिज्म है, जो शून्यवाद है, उससे दुनिया को मुक्त कर दिया बाय टेलिंग देम अबाउट कृष्ण. ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द. तो प्रभुपाद हैज टॉट अस अबाउट भगवान इति. भगवान मतलब एक्सचेंज, लविंग डिवोशनल सर्विस. तो on the occasion of Advaita Acharya's appearance there, we can take, we can continue this verse again tomorrow. लेकिन यहाँ पे पता है कि चैतन्य महाप्रभु इज द मोस्ट जेंटल. चैतन्य महाप्रभु जेंटल है. चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, सो ही इज आत्माराम. तो चैतन्य महाप्रभु जब जेंटल है तो चैतन्य महाप्रभु के अप्रोच ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑल्सो जेंटल एंड मैग्नेनिमस. जब कोई आत्माराम रही, जब सेटिस्फाइड रही, तब वो सके मैग्नेनिमस है, महावदन्याय सके. जैसे प्रभुपाद जी वॉज कंप्लीटली सेटिस्फाइड इन कृष्णा, और देयरफॉर उसके एक्शन मोस्ट मैग्नेनिमस. ही लीव्स एवरीथिंग फॉर स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस.
तो चैतन्य महाप्रभु भी जब मोस्ट मैग्नेनिमस है, तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि कोई पापी तापी यथाछिलो कोई के नहीं देखता है, everyone becomes entitled, अधिकारी for कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चैप्टर 6 अद्वैताचार्य के ग्लोरीज है, क्योंकि अद्वैताचार्य नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कैसे होता। तो तभी से आज मैं सोच रहा था कि माय मिस्टेक, मैंने डिले किया है। वी शुड हैव प्राइम्ड अप एवरीवन, क्योंकि आज दिन में प्रोग्राम है, तो जो लोग दिन में नहीं आ सकते तो सुबह मंगल आरती में आ जाना, क्योंकि ये हर साल का ये प्रोग्राम जो होता है अद्वैताचार्य अपीयरेंस डे इज नाउ द बिगिनिंग ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स फॉर the Gaudiya Vaishnavas, Advaitacharya, then Nityananda, then Gaur Purnima. So, but anyway, those who can make it to the midday program. तो चैतन्य चरितामृत में अद्वैताचार्य के बारे में बताया गया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वंदे तम श्रीमद् अद्वैताचार्यमद्भुत चेष्टितम यस्य प्रसादात् अज्ञोपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्। I offer my respectful obeisances to Sri Advaita Acharya, whose activities are all wonderful. By his mercy, even a foolish person can describe his characteristics. नरोत्तम दास ठाकुर भजन लिखे ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मेरे, तुम बिना किए दयालु जगत संसार। तो इसमें बताया गया अद्वैताचार्य के सीतापति, बिना अद्वैताचार्य के नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिलता है, बिना नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं मिलता है, बिना चैतन्य महाप्रभु कृपा के राधा कृष्ण का कृपा नहीं मिलता। तो बोला कि अद्वैताचार्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. पंच श्लोके कहिला श्री नित्यानंद तत्व, श्लोक द्वय कहे अद्वैता आचार्य रमत महत्व। In 5 verses I have described the principles of Lord Nityananda. Then in the following 2 verses I describe the glories of Sri Advaita Acharya. महाविष्णुर जगत कर्ता माया या सृजति अदा, तस्यावतार एवाव्यम अद्वैता आचार्य ईश्वरः। Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. Advaita Harinaadvaita Acharya Bhakti Samsana भक्तावतारम ईशम तम अद्वैता आचार्यम आश्रये। Because he is non-different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita. तो अद्वैताचार्य का नाम अद्वैता है क्योंकि वो महाविष्णु से अलग नहीं है। And because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. तो इसीलिए इसको अद्वैताचार्य कहते हैं। He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotees. Therefore, I take shelter. तो अद्वैताचार्य जो बताया वो सम्मिलित रूप है, अवतार है भगवान का और भगवान के भक्तों का। अद्वैता आचार्य गोसानी साक्षात ईश्वर, यहन्रा महिमा नाहे जीवेर गोचर। Sri Advaita Acharya is indeed directly the Supreme Personality of Godhead Himself. His glory is beyond the conception of ordinary living beings. तो बोले साधारण जीव अद्वैताचार्य का जो ग्लोरीज है उसको पूरा नहीं पकड़ पाते हैं। हम लोग का भी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के संस्था से नहीं जुड़ते, आई थिंक हम लोग कोई अद्वैताचार्य के लाइफ में जानता नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु नहीं जानता, नित्यानंद प्रभु नहीं जानता। Although we were worshipping Krishna, but we would not know the mercy incarnation of Krishna.
महाविष्णु सृष्टि करेन जगत आदि कार्य तांड्रा अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य. Mahavishnu performs all the functions of the creation of the universal. Sri Advaita is his direct incarnation. तो जितना क्रिएशन है सब महाविष्णु करें, तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि अद्वैताचार्य उसके डायरेक्ट इनकारनेशन है. ये पुरुष सृष्टि सृष्टि करे न माया अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न लीलाया. That Purusha creates and maintains with his external energy. He creates innumerable universes in his pastimes. तो बोला कि वो अपने बहिरंग शक्ति से क्रिएट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं. और बताया गया है कि he creates innumerable universes in his pastime. हम लोग समझते हैं कि कृष्ण के पास टाइम से चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम इज ओनली व्हेन द डिवोटीज आर चैंटिंग एंड डांसिंग एंड फीस्टिंग विद चैतन्य महाप्रभु. और कृष्ण बुक पास टाइम से ना, कृष्ण इज हैविंग बाल पास टाइम, भगवान के बाल लीला और गोपियों का लीला, ये सब. ये क्रिएशन भी भगवान के लीला है, पास टाइम है, क्योंकि कृष्ण के क्रिएट करे की कोई जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड फॉर क्रिएशन. बट लिविंग एंटिटी भगवान से बिछड़ता है, दूर होना चाहता है, देन कृष्ण हैज टू लाइक डू दिस फॉर देम. नेसेसरी नहीं है कृष्ण के मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन करो. तो बोले वो भी भगवान के पास टाइम है. इच्छाय अनंत मूर्ति करे न प्रकाश एका एका मूर्ति करे न ब्रह्मांडे. भगवती माता सुना देता है ना कि बहुत एको करता है. By his will, he manifests himself in unlimited forms, in which he enters each and every universe. फिर भगवान हर एक, देखो अद्वैताचार्य के ग्लोरी में समझाते हैं कि अद्वैताचार्य के प्रेजेंस हम लोग के समझे पड़ी कि कहा करे अद्वैताचार्य के मर्सी बिना नित्यानंद प्रभु के मर्सी नहीं मिले हैं. बिकॉज अद्वैताचार्य जो है वो महाविष्णु है, और महाविष्णु बोले हर एक ब्रह्मांड क्रिएट करे के बाद में फिर एक एक के अंदर में जाए. सो दैट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इन द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, एवरीथिंग इज परमेटेड बाय अद्वैताचार्य. बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि वी थिंक ऑफ कृष्णा एंड देन वी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. प्रभुपाद जी कहते हैं, when you think of Krishna, Krishna's name, Krishna's form, Krishna's pastimes, Krishna's dham, Krishna's paraphernalia, Krishna's devotees, everything is Krishna. Krishna is never alone. Krishna कभी अकेले नहीं रहते. He is always with his devotees. से पुरुषेरा अंश अद्वैत नहीं किछु भेद, शरीर विशेष तांड्रा नहीं का विच्छेद. Sri Advaitacharya is a plenary part of that Purusha and so is not different from him. Indeed, Sri Advaitacharya is not separate but is another form of that Purusha. सहाय करेन तांड्रा लया प्रधान, कोटि ब्रह्मांड करेन इच्छाया निर्माण. He, Advaita Acharya, helps in the pastimes of the Purusha with those material energy and by whose will he creates innumerable universes. तो Advaita Acharya भगवान के pastimes में हेल्प करे, सहयोग करे. जैसे अद्वैता, अब चैतन्य महाप्रभु के कलयुग के प्रारंभ में आए गए तो अद्वैताचार्य पहले से अब तुलसी और गंगा जल शालीग्राम के अर्पण करके और भगवान के कोल करे. बिकॉज क्या करे, कोल करे, बिकॉज ही सो द सफरिंग ऑफ द लिविंग एंटिटीज. तो ये कृष्ण के एक पास टाइम है टू सेव द लिविंग एंटिटीज, द कंडीशन सोर्स. तो अद्वैताचार्य इज हेल्पिंग द पास टाइम ऑफ कृष्ण. जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल यांद्र नाम. Being a reservoir of all auspicious attributes, Sri Advaita Acharya is all auspicious for the world. His characteristics, activities, name are always auspicious.
तो श्री अद्वैता प्रभु हु इज पपर्ड बाय श्रील प्रभुपाद, श्री अद्वैता प्रभु हु इज एन इनकारनेशन ऑफ महाविष्णु इज एन आचार्य और टीचर. All his activities and all other activities of Vishnu are auspicious. Anyone who can view the all auspiciousness in the pastimes of Lord Vishnu also becomes auspicious simultaneously. क्योंकि भगवान के जो सब लीला है वो मंगलमय है, तो प्रभुपाद जी बोले कि जो भगवान की लीलाओं को देख सकता है वो भी ऑस्पिशियस हो जाएगा. तो कितना अच्छा लॉजिकल वे में वो समझ सकते हैं कि बता नित्यम भागवत से अनष्ट प्रायश्वदेश, जब रोज हम लोग भागवत पढ़ेंगे तो ऑस्पिशियसनेस हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की लीला ऑस्पिशियस है, तो जो उसको देखेगा, जो पढ़ेगा, वो भी ऑस्पिशियस हो जाएगा. जब देखे, मैंने बोला देखेगा, तो मुझे याद है प्रभुपाद जी के फाइनल पास टाइम में ना, प्रभुपाद जी बोले एवरीवन मस्ट राइज टू मोड ऑफ गुडनेस, सभी को सत्वगुण में उठना है. तो प्रभुपाद जी बोला कैसे उठेंगे? एवरीवन मस्ट सी द मंगला. मतलब केवल जो करता है वही नहीं बेनिफिट करता है, जो अटेन करता है, जो केवल देखता है मंगल आरती. मंगल आरती मतलब ही मंगल है, ऑस्पिशियस है. सो देन एवरीथिंग बिकम्स ऑस्पिशियस. Therefore, since Lord Vishnu is the fountainhead of auspiciousness, anyone who is attracted by devotional service of Lord Vishnu can render the greatest service to human society. देखो प्रभुपाद जी क्या लिंक करते हैं. प्रभुपाद जी बोला कि जो डिवोशनल सर्विस से अट्रैक्ट हो जाता है भगवान के, वो सकता है जगत कल्याण करे. क्योंकि अद्वैताचार्य के यहाँ डिस्क्राइब किया है वर्स में जगत मंगल अद्वैता, for the auspiciousness of the whole world, human society. Rejected persons of the material world who refuse to understand pure devotional service as eternal function of the living entity and as actual liberation of living entity from conditioned life become bereft of all devotional service because of their poor fund of knowledge. जब हम लोग के डिवोशनल सर्विस के नॉलेज नहीं रहेगा, तो बोला कि because of poor fund of knowledge, क्या होगा? We will become bereft of devotional service. कभी कभी हम लोग भी मतलब संस्था से जुड़ जाते हैं, हम लोग चांट करने लगते हैं, डिवोटी बन जाते हैं. लेकिन अगर डिवोटी अपना डेली रीडिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक, प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ आई हैव एनी क्रिटिसिज्म ऑफ माय डिसाइपल्स इज दे डोंट स्टडी माय बुक्स. अगर प्रभुपाद बोले हम एवरी डे, प्रभुपाद जी कहते हैं 1 hour every day रीडिंग करना चाहिए. जीवनाथ प्रभु वाज वेरी जनरस, इसे बोले 30 मिनट्स भी पढ़ता हूँ. No, devotees don't read every day, पढ़ना चाहिए. I think very few people they read every day. अब हम लोग तो इतना भी मोटिवेट करते हैं कि अच्छा 1 page a day भी पढ़ो ना, बट एवरी डे रीडिंग. तो यहाँ पे बोले मैं ये प्रभुपाद जी का सेंटेंस को रिवर्स में ले जाता हूँ. मतलब becomes bereft of devotional service because of poor fund of knowledge. तो प्रभुपाद के बुक्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग डिवोशनल सर्विस से बिरेफ्ट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई समटाइम्स वी वंडर क्यों एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी कृष्णा कॉन्शियस छोड़ देता है. वो छोड़ देता है क्योंकि उसका नॉलेज जो है, नॉलेज ऐसा चीज़ है, नॉलेज को आप जब प्रीच करते हैं तो इट्स लाइक आप उसको उथल रहे हैं. जब तक आप मंथन नहीं करते रहोगे तो एसेंस नहीं मिलेगा. आई कैन गिव यू प्रभुपाद बुक. कल जुनाद को जो बोल रहे थे तो मेरा माइंड में एग्जाम्पल आया कि प्रभुपाद बुक इज लाइक सुरभि गाय का दूध है. इट्स फिल्ड विथ बटर, मक्खन, घी. लेकिन अगर उसको चर्न नहीं करोगे तो बटर नहीं निकलेगा, माखन नहीं आएगा. तो प्रभुपाद यही बोलते हैं जब डिवोटी क्लासेस सुनेंगे नहीं बराबर, या तो रीड नहीं करेंगे, सुनना या रीड करना अगर कंटिन्यूअसली नहीं करोगे दैट मीन्स यू आर नॉट चर्निंग. चर्न करके ज्ञान के एसेंस क्या है? ज्ञान के एसेंस है डिवोशनल सर्विस ना. डिवोशनल सर्विस है तो हमारा डिवोशनल सर्विस छूटने लगेगा. आवर सर्विस टू कृष्णा छूटने लगेगा. चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? जन्म सार्थक. तो जो हम लोग डीडी वर्शिप करते हैं, जो हम लोग प्रभुपाद गुरु पूजा करते हैं, जो हम लोग बैठ के भागवत सुनते हैं, जो हम लोग चांटिंग करते हैं, ये जन्म सार्थक है. दिस इज डिवोशनल सर्विस, राइट. तो फिर उससे और ऊपर जाएंगे तो प्रभुपाद जी बोला कि जो ऑस्पिशियसनेस देख सकता है वो जगत का कल्याण कर सकता है. तो जन्म सार्थक देन करी कर परोपकार. तो जिसका जन्म सार्थक होने लगेगा वो परोपकार करेगा.
तो दी अदर वे देखेंगे, परोपकार वो कर पाएगा जो डिवोशनल सर्विस में अपना जन्म सफल कर रहा है। अपना जन्म सफल करने के लिए नॉलेज चाहिए। तो जिसको नॉलेज लैक करता है वो अपना जन्म भी नहीं सफल कर पाएगा, जो अपना जन्म नहीं सफल कर पाएगा वो दूसरों का जगत कल्याण भी नहीं कर पाएगा। तो अद्वैताचार्य को बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, जगत मंगल अद्वैता मंगल गुणधामा मंगल चरिता सदा मंगल यांद्र नामा। In the teachings of Advaita Prabhu, there is no question of fruitive activities or impersonal liberation. अद्वैताचार्य ना कर्मकांड एंटरटेन किया है ना impersonal liberation. Bewildered by the spell of material energy, however, persons who could not understand that Advaita Prabhu is non-different from Vishnu wanted to follow him with their impersonal conceptions. जीवनाथ प्रभु चैतन्य चरितामृत शुरू से बहुत अच्छा से स्टडी किया है, तो मतलब हम लोग सोचेंगे कि व्हाट इट मीन्स, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब वो डिवोशनल सर्विस आके प्रचार किए, फिर उसके बाद से कुछ ग्रुप्स हुए जो अपने मनोभाव से चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को अप्लाई किए। तो उसी प्रकार से अद्वैताचार्य के ओन फॉलोअर्स भी कुछ थे जो अद्वैताचार्य को भी नहीं समझ पाए, और अद्वैताचार्य वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट मनीज्म और फ्रूटिव एक्टिविटीज, यट उनके फॉलोअर्स मनीज्म में पड़ गए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे मतलब चैतन्य चरितामृत, इफ यू नो आई एनकरेज एवरीवन टू स्टडी चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो उसमें ढेर बताया गया। तो तभी से जो प्रभुपाद जो हम लोग के पंथ दिया है, जो प्रोसेस दिया है, उसके जितना अलाइन रहेंगे हम लोग उतना सेफ है हम लोग डिवोशनल सर्विस में। नहीं तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को लगेगा, संसार के लोग जैसे कृष्ण भक्ति करते हैं, जितने लोग कृष्ण भजन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हम लोग को लगता है, मैं देखता हूँ कि नो समय मेनी टाइम्स हम लोग के डिवोटीज लोग भी वो यूट्यूब चैनल में जाते हैं, तो यूट्यूब चैनल में प्रभुपाद का देखते हैं, गौरंगा प्रभु का देखते हैं, राधानाथ महाराज का देखते हैं, फिर ये देखते देखते हम लोग और कोई आचार्य देखते हैं, वो कृष्ण की कथा बोल रहा है, ये देवी वो देवी ये सब में, फिर हम इसे पढ़ते पढ़ते तो हम लोग ये स्टेज सकता है आज। यही चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी कवा करें। चैतन्य चरितामृत में ये चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स में हुआ है, नित्यानंद प्रभु के फॉलोअर्स में हुआ है, अद्वैताचार्य के फॉलोअर्स में हुआ है। तब गौड़िया वैष्णविज्म में भी डिविएशन हो गई। तो इफ यू जस्ट नो चैतन्य महाप्रभु डज नॉट मीन देयर कैन नॉट बी एनी डिविएशन। खुद नित्यानंद प्रभु के चिल्ड्रन बिकेम डिविएटेड। तो the attempt of Advaita Prabhu to punish them, okay. Prabhu is not different from with him the impersonal conceptions. The attempt of Advaita Prabhu to punish them is also auspicious. Lord Vishnu and his activities can bestow all good fortune directly or indirectly. तो जो लोग ये संसार के नियमों से भी जाते हैं वो अल्टीमेटली ऑस्पिशियसनेस पे आएंगे। ये जो प्राकृतिक नियम चलता है, जो पनिश करता है प्राकृतिक नियम, वी डू रॉन्ग सिंफुल थिंग्स, वी गेट पनिश्ड, वी बर्थ अगेन एंड अगेन। तो अगेन एंड अगेन बर्थ भी जो है वो भी क्या किस में आता है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। तो अल्टीमेटली द होल सिस्टम ऑफ कृष्णा इज फॉर द ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लिविंग एंटिटी। कोई अभी मानता है नहीं मानेगा, लेकिन भगवद गीता में बताया कि भगवान अल्टीमेटली सबको कंट्रोल में लाएंगे। कैसे? in the form of death. No matter how independent you want to be, you will have to come in control of Krishna. According to some, Mangala was another name of Advaita Prabhu. According to some, Mangal was another name of Advaita Prabhu as the causal incarnation or Lord Vishnu's incarnation for a particular occasion. He is the supply agent or ingredient in the material nature. However, he is never to be considered material. All his activities are spiritual. Anyone who hears about and glorifies him becomes glorified himself. For such activities, free one from all kinds of misfortune. तो बोला कि जो अद्वैताचार्य को या कृष्ण को ग्लोरीफाई करता है वो भी ग्लोरीफाइड हो जाता है। मैं हलधर स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बोलते हैं कि आज हम लोग
क्या अवस्था में है? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज. व्हाट आर पीपल डूइंग? वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज. देयरफॉर वी बिकम प्रीचर्स. व्हेन वी बिकम प्रीचर्स वी गेट सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल से, ओह वाओ, आई हैव नेवर हर्ड दिस. बट एक प्रीचर के माइंड में सब टाइम ये फिक्सेटेड रहे, द ओनली रीजन आई हैव दिस नॉलेज इज बिकॉज ऑफ प्रभुपाद. नहीं तो ये नॉलेज हम लोग के नहीं होता. आज हम लोग जो जानते हैं, जो जिसके कारण से दुनिया हमको सहारता है, जिसके कारण से दुनिया हमको माला पहनाता है, जिसके कारण से दुनिया हमको फॉलो करता है, वो फॉलोइंग है प्रभुपाद का. क्योंकि अगर हम खुद भी नहीं ये नॉलेज ग्रास करते तो आज हम लोग we could not have done any contribution to this world. तब ऐसे यहाँ प्रभुपाद जी बोले कि जो भगवान को ग्लोरीफाई करेगा वो भी खुद ग्लोरीफाइड हो जाएगा. बट हम लोग के मांगो सब टाइम ख्याल करो, वी आर हियर ओनली बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद नहीं रहता तो हम लोग नहीं एग्जिस्ट होता. तो वन शुड नॉट इन्वेस्ट एनी मटेरियल कॉन्टेमिनेशन और इम्प्रेशनिज्म इन द विष्णु फॉर्म. बोले को संसारिक मलिनता जो है, भौतिकवाद कृष्ण कॉन्शियसनेस में या भगवान में नहीं डालना चाहिए. कि हम लोग भगवान मटेरियल दृष्टि से नहीं. तो वैसे it's just my realization of a period of time I'm thinking by practicing Krishna consciousness for so many years. I'm seeing that हम लोग, जैसे मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट बोला था ना, कि हम लोग सबको इन कृष्णा कॉन्शियसनेस के फल जो है वो मटेरियल डेवलपमेंट से हमेशा करते हैं. दिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ना. या तो हम लोग मटेरियली हम लोग सोचेंगे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस होने के कारण से आई हैव बिकम बिग मैन. दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. दूसरा, कितना लोग हैं, अगर हम लोग प्रधानमंत्री को देखे या कोई व्लादिमीर पुतिन को देखे, डोनाल्ड ट्रंप के देखे, ये तो बड़ा बड़ा आदमी लोग हो गए. कहाँ डिवोशनल सर्विस सबके मुझे अभी चेंज करे लोग. तो अगर कृष्ण कॉन्शियस के लिए बड़ा आदमी बन जाओ तो कृष्ण कॉन्शियस के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है. वो तो आदमी अपने कर्म अनुसार भी बन जा सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज मटेरियल कॉन्टेमिनेशन हम लोग जो भगवद गीता में बताया गया है वो दुखी पेशन आता है, डिस्ट्रेस, अर्थार्थी, जिज्ञासु आता है. बट पर्पस क्या है? दे में कनेक्ट इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस. मैं चाहता हूँ मेरे को वेल्थ मिल जाए, मैं चाहता हूँ मुझे पोजीशन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए. आई कनेक्ट, बट द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टू मेक यू प्योर डिवोटी. प्योर डिवोटी मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस समझ गया है. प्योर डिवोशनल सर्विस जो समझ गया है वो सब कृष्ण के मिशन में लग जाता है. टू सेव. कृष्ण के मिशन क्या है? टू सेव. ही वांट्स हिज चिल्ड्रन बैक. Everyone should try to understand the real identity of Lord Vishnu, for by such knowledge one can attain the highest stage of perfection. तो सबको इनके काम है रियल आइडेंटिटी भगवान के समझो. प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर में बोले कि भगवान हम लोग की ओडा सप्लायर नहीं है. हम लोग भगवान के लिए भगवान जन्म दे ही धनम दे ही, हम लोग ऐसे नहीं. भगवान हमको ओडा सप्लायर नहीं है. भगवान हम लोग के सके अपन धाम. कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार, एतलान सृजे पुरुष शकल संसार. महाविष्णु creates the entire material world with millions of his parts, energies and incarnations. हम लोग केवल जानते हैं भगवान के 24 अवतार या 4-5 अवतार. भगवान बोले अनंत. रामादि मूर्तिषु कलनीय मेन तिष्ठा नाना अवतार करो. तो कॉमनली आदमी राम मूर्ति जाने हैं, नारायण जाने हैं. तो बोले राम आदि मूर्तिषु कला एक्सपेंशन नियमेन एते चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं. तो कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड. माया याचे दुई अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपदान प्रधान. पुरुष ईश्वर आइचे द्विमूर्ति हया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपदान लन. Just as the external energy consists of two parts, the efficient cause nimitta and the material cause upadana. Maya being the efficient cause and pradhan the material cause, so Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes two forms to create the material world with efficient and material causes. So Prabhupada ji बोले there are two kinds of research to find the original cause of creation.
One conclusion is that the Supreme Personality of Godhead, the all blissful, eternal, all-knowing form, is indirectly the cause of this cosmic manifestation and directly the cause of spiritual world, where there are innumerable spiritual planets known as Vaikunthas, as well as his personal abode known as Golok, Vrindavan Dham. तो यहाँ पे पता है प्रभुपाद जी कि भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसको बोले वैकुंठ प्लेनेट, और एक भगवान के निज धाम, पर्सनल प्लेस। एक व्यक्ति हो सकता है उसके रहे के घर एक है, एक में रहता है और उसके ढेर प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है। तो भगवान के सब वैकुंठ प्लेनेट सब भगवान के, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड है सब। In other words, there are two manifestations, the material cosmos and the spiritual world. As in the material world, there are innumerable planets and universes, so in the spiritual world, there are also innumerable spiritual planets and universes, including the Vaikunthas and Goloka. The Supreme Lord is the cause of both. भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वम प्रवर्तते. Everything emanates from me. All that is, everything comes from. I'm the source of everything. Bhagavad Gita 10:8. First verse of Chaturshloki Bhagavad Gita. The other conclusion, of course, is that this cosmic manifestation is caused by an inexplicable, unmanifested void. This argument is meaningless. प्रभुपाद जी कितना वास्टली नॉलेजेबल है ना। प्रभुपाद जी बोले और एक समझ है कि इनएक्सप्लेसिबल, बोले एक्सप्लेन नहीं करे सको, आदमी नहीं जान पावे कि कहाँ से हो, आदमी समझे नहीं, बट बोले अनमैनिफेस्टेड, निराकार ब्रह्म से सब चीज हुई। जब निराकार ब्रह्म के फॉर्म नहीं रहा तो दूसरा सब चीज फॉर्म कैसे हुई? तो कांट एक्सप्लेन। तो प्रभुपाद बोले दिस आर्गुमेंट इज मीनिंगलेस, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। The first conclusion is accepted by the Vedanta philosophers and the second is supported by the atheistic philosophical system of Sankhya Smriti, which directly opposes Vedantic philosophical conclusion. Material scientists cannot see any cognizant spiritual substance that might be the cause of the creation. Such atheistic Sankhya philosophers think that the symptoms of knowledge and living force visible in the innumerable living creatures are caused by the three qualities of the cosmic manifestation. Therefore, the Sankhyais are against the conclusion of Vedanta regarding the original cause of creation. तो देखो यहाँ पे थोड़ा हार्ड लगता है ना सब्जेक्ट मैटर, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, जब हम लोग उसको नहीं समझेंगे तो डिवोशनल सर्विस हम लोग के सेंटिमेंटलिज्म हो जाएगा, खाली भावुकता से नहीं होता। यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये एथिस्ट लोग हैं बियॉन्ड समझ नहीं पाते। एक टाइम प्रभुपाद जी को कोई प्रश्न पूछा, हैव यू सीन गॉड ना? तो प्रभुपाद जी बोले कि प्रभुपाद जी को बोला कि आई मे नॉट हैव सीन गॉड बट आई हैव मेट पर्सन्स हु हैव सीन गॉड। तो वेदांत जो है ये वेद अंत है। वेदांत मतलब एक दृष्टांत, दृष्टि, एक विजन, मतलब यू आर द विटनेस। जैसे ब्रह्मा जी विटनेस है। Brahma is the first created being. He didn't know, he couldn't see anything, nothing. When he did tapasya, then he got the empowerment to create. So he is telling, Ishvara Parama Krishna Sachidananda, Govindam Adi Purusham Tamam Vijaya. I may not have seen. Prabhupada gives another example. Just like we take the example of Australian region, sab log gaya hai. Maybe Egypt. How many of us have been to Egypt? So do we believe Egypt exists? I've been there, so I know it exists. So now I can tell you that yeah, it exists. It's all desert, it's all pyramids, all these kind of things, tombs, Yes, I will. Because I've seen it, I can tell you. So the embassy is the representative of the country. So Australian embassy, the people from there, so it's there. So similarly, Vedic spiritual life is like that. So that's why we have this disciplic succession. Guru Shishta Pidata. तभी बताया भगवद गीता, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, one who has seen the truth. So you take shelter of them, then you. Factually, the Supreme Absolute Spirit Soul is the cause of every kind of manifestation and He is always complete, both as the energy and as the energetic. तो बोला कि जो Absolute Spirit Soul है, Absolute Spirit कौन है? भगवान। भगवान।
तो he is present in both as energy and as the energetic. हम लोग भगवान के energy है, and Krishna does everything. He is the possessor of this energy. Philosophers who are subjectively engaged in cosmic manifestation can appreciate only the wonderful energies of the matter. Such philosophers accept the conception of God only as a product of material energy. तो ये सब बात प्रभुपाद जी क्यों यहाँ पे जरूरी समझते हैं, लिखते हैं अद्वैताचार्य के सेंस में? बिकॉज कि अद्वैताचार्य के और पास्ट टाइम हम लोग वी कांट कंप्लीट एवरीथिंग, और पास्ट टाइम जब पढ़ेंगे देयर सो मेनी टाइम्स अद्वैताचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु दे इंटरेक्ट इन सर्टेन वेज that gives the common man the understanding of true meaning of pure devotional service, the true meaning of Vedanta. कोई जगह पे अद्वैताचार्य के आगमन भी है कृष्ण से, कभी कभी अद्वैताचार्य कोई बिहेवियर भी करे तो चैतन्य महाप्रभु एक टाइम एक इंसिडेंट हुआ, चैतन्य महाप्रभु उसके खूब पीटीस, तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रभु लिखा है नॉट दैट अद्वैताचार्य डिड नो, बट अद्वैताचार्य जब खूब पीटीस था अद्वैताचार्य बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से बोले नाउ आई नो बिकॉज यू कंसीडर मी योर ओन, दैट्स व्हाई जरा प्रभु लाडदा बताया, जरा प्रभु बोले जब कभी जरा प्रभु के नीचे आए ना हरदम डांट वाट सबके, तो जरा प्रभु की फिलोसफी है कि अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु कि आपन रहता उसके डांटा जाए ना, दूसरा थोड़ा बोला जाए. So when you get chastised, even by the spiritual master, when you get chastised, means the spiritual master, तो वैसे जब डिवोटी स्पिरिचुअली एडवांस हो जाता है तब उसके लाइफ में जब प्रॉब्लम भी आवे तो डिवोटी नोज दैट एक्चुअली कृष्ण इज टेकिंग पर्सनल केयर ऑफ मी. उसमें क्या पर्सनल केयर है? अब भी हम लोग आज भागवतम में पढ़ा था कि बोले कि यू हु आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियली इम्प्रोविश. तो जब हम लोग के ये सब सिचुएशन आवे है दैट मीन्स कृष्ण इज गिविंग पर्सनल अटेंशन टू अस, ये बात हो जाता है. तो जैसे क्विक वन, आई थिंक देयर स्टिल सम डिले. तो वो एक बार कृष्ण और अर्जुन गए थे ना अपने राज्य में घूमने, तो कृष्ण एंड अर्जुन वेंट टू अ ओल्ड लेडी, सो वाज वेरी ओल्ड, वन काउ. तो उसके घर सर्व करी, अर्जुन बोले कृष्ण गिव द ब्लेसिंग, तो कृष्ण गिव द ब्लेसिंग, द काउ डाइज. देन दे वेंट टू अ किंग्स प्लेस, तो किंग्स प्लेस दे वेंट, दे सर्व्ड. तो अर्जुन बोले गिव ब्लेसिंग, तो ही गिव अ ब्लेसिंग, बोले किंग की और ऑपुलेंस बढ़ जाए. अर्जुन बोले अरे उसके लिए कुछ नहीं रहा था, उसके गाय बोला मर जाए और उसके राजा उसके लिए ऑलरेडी है, तुम बोला और दे दो. तो बोले दैट वाज द ओनली अटैचमेंट शी हैड, आई नीड टू कट दैट सो दैट शी कैन गो बैक टू गॉड. एट द किंग्स प्लेस द किंग वाज सो बिजी इन अदर वर्क दैट ही डिडंट सर्व. सब अरेंज कर दिया, एकदम फर्स्ट क्लास सर्विस मिला कृष्ण को. तो बोले ही इज सो मच बिजी, ही कांट पर्सनली सर्व मी, सो लेट हिम बी मोर बिजी. कृष्ण वांट्स पर्सनल रिलेशनशिप, कृष्ण पर्सनल भगवान है. So everyone to do personal service is very important because that's what Krishna's connection is. So from Advaita Acharya, so please come lunchtime, you can hear more about Advaita Acharya. जय श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, अद्वैत आचार्य की जय, गौ प्रेमानंदे.
This is Krishna